डीसी कारगिल ने सुरू घाटी के प्रचार सोनमर्ग में निगरानी डेस्क पर्यटकों के लिए पर्यावरण शुल्क पर बैठक की अध्यक्षता की। वहीं ALSWAC ने नुकुश लद्दाख का किया आयोजन। चंडीगढ़ में एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव की वापसी। 5 साल के अंतराल के बाद आयोजित ये कार्यक्रम। वहीं पैंगोंग के मान गांव के 45 दिवसीय शीतकालीन शिविर बड़ी सफलता के साथ संपन्न। स्थानीय छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षा और समग्र विकास की दिशा में उठाया गया ये महत्वपूर्ण कदम। Jule Salam, my name is Sring Lazis. My name is Leela B. Today, we are diving into something that holds a special place in every Indian's heart, the Indian national flag. That's right. The national flag is not just a symbol. It represents the hopes, aspiration and pride of the nation. But with that honor comes great responsibility. There are strict guidelines and rules about how we should display and respect the flag. In this video, we will walk you through the important provisions of the Flag Code of India and why it's crucial for all of us to uphold the dignity of the national flag. So, let's get started and learn how we can all show our respect for the symbol of India's pride and unity. The Indian national flag is a powerful symbol of the nation's pride, unity and aspiration, deeply respected by the people of India. It holds a unique emotional significance and represents the value and honor of the country. The hoisting and display of the national flag are governed by the Prevention of Insults to National Honor Act 1971 and the Flag Code of India 2002. That's right. Some key provisions under the Flag Code of India 2002 include the amendment in 2021 which allowed the national flags to be made from materials like polyester, machine-made fabrics or khadi bunting in cotton, wool or silk. As per clause 10th of the paragraph 2.2 of part 2nd of the Flag Code of India, the national flag made of paper may be waved by the public on the occasions of important national, cultural and sports events. You are requested to ensure that on the occasions of important national, cultural and sports events, flag used by the public made of paper are not discarded or thrown on the ground after the event. Such flags are to be disposed of in private, consistent with the dignity of the flag. Exactly, and the flag can be displayed by the public, private organization or educational institution on any day as long as it's done with the respect and accordance with the flag's dignity. In fact, there was another important change in 2022 where it was permitted to fly the flag both day and night when displayed on private and public buildings. This enhances its visibility and honors the flag even more. The flag should always be rectangular in shape with a length to height ratio 3:2, and whenever it is displayed, it should always occupy the position of honor. Also, a damaged or disheveled flag should never be flown and it shouldn't be displayed alongside any other flag or bunting at a higher level. And another important rule is that the national flag can only be flown on vehicles of special dignitaries such as President, Vice President, Prime Minister and Governors. These guidelines are in place to ensure that the national flag is treated with the respect it truly deserves, reinforcing the pride and values it represents for the people of India. For more details, you can visit the Ministry of Home Affairs website at www.mha.gov.in. Let's cherish our Tiranga and uphold its dignity in every way possible. Jai Hind. Issued in public interest by the Department of Information and Public Relations.
स्वागत है आप सबका लद्दाख स्पेशल बुलेटिन में और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कारगिल में सीईसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने सुरु घाटी को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने और पर्यावरण शुल्क निर्धारित करने पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सोनमर्ग में निगरानी डेस्क स्थापित करने और पर्यटकों के लिए पर्यावरण शुल्क तय करने पर भी चर्चा हुई। सीईसी ने कहा कि पर्यटन विभाग के कर्मचारी कारगिल में विभिन्न आकर्षणों के बारे में पर्यटकों के बीच में जागरूकता बढ़ाएंगे और आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। लद्दाख के छात्र संगठनों ने कश्मीर विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में लद्दाखी उम्मीदवारों को शामिल करने के खिलाफ जो निराधार आरोप हैं उन पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से योग्यता के आधार पर और यूजीसी मानदंडों में पूर्ण अनुपालन में थी। अस्सलाम वालेकुम जुले, मैं मुश्ताक अली, प्रेसिडेंट लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है, रिसेंटली हमने एक वीडियो देखा गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स अलायंस करके एक जो है उनकी तरफ से एक मीडिया बाइट आया था जिन्होंने जो है रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में रिक्रूटमेंट हुआ उसमें जो लद्दाखीज़ की इंटेलिजेंस को उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठाया। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ ने जो रिक्रूटमेंट किया उन्होंने यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से किया। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि वहाँ पे लद्दाखीज़ को टारगेट किया गया। अगर वहाँ पे लद्दाखी सिलेक्ट भी हुए हैं, वहाँ पे रिक्रूट हुए भी हैं, तो वो अब मेरिट के बेसिस पे हैं, यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से हैं। जम्मू कश्मीर का लद्दाख के साथ एक हिस्टोरिकल बॉन्डिंग रहा है और हमेशा से जम्मू कश्मीर लद्दाख के स्टूडेंट्स का जम्मू कश्मीर में आना जाना रहा है। यहाँ के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट्स का आना जाना रहा है। तो ये रिक्रूटमेंट प्योरली मेरिट बेसिस पे हुआ है। इसमें जो स्पेसिफिकली लद्दाख का नाम लेकर लद्दाखीज़ को टारगेट करना एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये जो है ये कुछ लोगों का सोच है जो कि लद्दाख को या एक लद्दाख के ख़िलाफ़ एक इन्वायरमेंट बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देंगे। हालांकि इन्होंने जो ये इशू रेस कर रहे हैं, हालांकि अपने आप में कोई इशू है ही नहीं। जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ में ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ यानी कि ALSWAC द्वारा आयोजित सांस्कृतिक उत्सव नुकुश लद्दाख का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 5 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्घाटन लद्दाख के संसद सदस्य हाजी मोहम्मद हनीफा जान ने किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर अमित चौहान सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर ALSWAC की आधिकारिक पत्रिका अफकार-ए-नौ का अनावरण भी किया गया। लद्दाख के ईसी ताशी ने नीमू पद्मू दारचा रोड पर ड्यूटी के दौरान एक समर्पित मशीन ऑपरेटर और श्रमिक की दुखद हानि पर शोक संतप्त परिवार और प्रोजेक्ट YOJAK की टीम के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिवंगत की आत्मा को शांति मिले और आपको और सीमा सड़क संगठन की आपकी पूरी टीम को उसे भावना और दृढ़ संकल्प के साथ अपना महत्वपूर्ण कार्य जारी रखने का साहस मिले। पैंगोंग के मानगांव में आयोजित 45 दिवसीय शीतकालीन शिविर ने समग्र शिक्षा में एक शानदार सफलता हासिल की। रॉयल एनफील्ड और साथ ही साथ SLC द्वारा आयोजित इस शिविर ने स्थानीय छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षा और समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। शिविर में विविध गतिविधियों के माध्यम से सीखने और समृद्ध बनाने पर ध्यान भी केंद्रित किया गया। तो चलिए फिलहाल लद्दाख स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।